My dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and let me welcome you to session number 39 of Knowledge Management. I hope in the last session you are not feeling bored because of the IT related information, more of a technology, less than of a business. But then it's also important कि आपको ये भी पता हो कि आपने नॉलेज इंजीनियर से, आईटी प्रोफेशनल से कौन सा नॉलेज टेसिट या एक्सप्लिसिट कहां से एक्वायर करना है, कैसे जनरेट करना है, कैसे सिस्टम को क्रिएट करवाना है. एज ए बिजनेस मैनेजर आई थिंक देन यू शुड बी फेमिलियर विद द बज़वर्ड्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो इसीलिए क्रिएशन एप्लीकेशन के हवाले से we learn that although you have a choice, that you can have an expert around, watch him how he or she does the work, involve him to come up with ideas so that we can solve some problems of marketing, of finance, of insurance, of telecommunication. But then at the same time you should have a choice. How can you look into the databases and extract and mine the explicit information? Let it be available for the business managers so that they can blend with their experience and insight, come up with their intuition, and have their own wisdom to make a quality decision. A decision which will raise the satisfaction level of the customer. A decision which will launch a better design product. तो इसीलिए फिर लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि while you are capturing the knowledge, it is very important for you that to begin with, it should be clear in front of you. Remember we were saying in developing a system of knowledge management, you keep in mind the life cycle. और लाइफ साइकिल में एक स्टेज थी कि आपके सामने मास्टर प्लान सारा होना चाहिए. तो कैप्चरिंग द नॉलेज के पर्सपेक्टिव में हमने ये लर्न किया कि इफ यू आर eliciting tacit knowledge, if you are acquiring tacit knowledge, then you should also be familiar with how to represent that knowledge for computing machine. How are you going to let it be known for the PC, for the laptop, for the desktop? तो हमने ये लर्न किया कि टेसिट नॉलेज को इलिसिट करने के लिए either you can use one-to-one interviewing technique, or you can go for on-site observation, watch how things are being done, and then you write your own script. Maybe you can call for a brainstorming session, physical session. और अगर experts available नहीं हैं, then you can go for electronic brainstorming. और पांचवी जो टेक्निक हमने लर्न की टेसिट नॉलेज को इलिसिट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, वो कौन सी थी बताइए जरा जल्दी से. पांचवी टेक्निक आप लोग खुद यूज कर रहे हैं और शायद आपको अंदाजा ही नहीं कि नॉलेज तो क्रिएट हो रहा है, नॉलेज जनरेट हो रहा है. वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो कोर्स रिलेटेड बुलेटिन बोर्ड है जिसको हमने कहा था ब्लैक बोर्ड. You raise a question, maybe a colleague of yours, student of your class, somewhere in Pakistan, outside Pakistan, maybe can give you a solution. And all that information which is being posted on the bulletin board is being recorded. और आप अगर वो सारा स्क्रिप्ट देखना चाहें, and I'm sure the course tutors and the course organizers and maybe professors can look into it, who said what and how it was addressed and it was answered. इसके बाद फिर हमने कहा कि अब आती है बारी किस चीज की, कोडिफिकेशन की. कोडिफिकेशन का तस्करा करते हुए मैंने आपसे उस वक्त भी ये बात शेयर की थी कि इफ यू आर फ्रॉम द बिजनेस और नॉन आईटी बैकग्राउंड, just learn it, some names. But if you are from IT,
you will be happy that those techniques you already are familiar with, that how to implement what you have already learned, tacit or explicit, to develop a knowledge based system. उस हवाले से फिर हमने कहा था the choices are depending upon कि आप टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं. डिसीजन ट्री फ्रेम्स की सूरत में आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे. और क्या चीज थी? प्रोडक्शन रूल, एक्सपर्ट सिस्टम की जुबान में. और एक्सपर्ट सिस्टम बाय द वे इज एन AI बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन. और चौथी क्या चीज मैंने कही थी? CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है ये पाकिस्तान का, ये केस बेस्ड रीजनिंग है. बिल्कुल वो केसेस जो आपको क्लास में दिए जाते हैं. यू रीड देम आउट, सी व्हाट द मैनेजर इन अ गिवन सिचुएशन made a decision, good or bad. If it was a bad decision, you should avoid it. If it is a good decision, it will help you to make a better decision if the same situation arises in future. You learn from the case. So, आज फिर, are you ready now? We are going to move to a bit more touchy, a bit more difficult knowledge sharing system. Knowledge sharing system would help to share the knowledge among the knowledge workers, among the students, among the lawyers, among the doctors, among the nurses, among the knowledge workers. और हम देखना चाहेंगे कि फिर knowledge sharing क्यों करें जी हम? What's in it for me? ठीक है, कंपनी तो चाहती है कि मैं अपना सारा दिल और अपना सारा दिमाग कागज पे रख के दे दूं. Why? It's a very important question. अच्छा, फिर मुझे ये कहने का भी मौका दीजिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर आपको मौका मिले कोई नॉलेज बेस्ड या नॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलप करने का, मे बी नॉलेज शेयरिंग सिस्टम इज द वन यू विल स्टार्ट. यू विल सी द बेनिफिट इमीडिएटली. नॉलेज क्रिएशन के लिए तो देखिए ना, आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, उसके साथ इंटरव्यूइंग टाइम चाहिए. इट विल रिक्वायर रिसोर्सेस, एंड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. नॉलेज शेयरिंग, comparatively, you will be known, you will be visible, you will become a champion if somehow you become successful in letting people speak out, in letting people show their heart, in letting people give a better algorithm, better problem solution, better decision making, better design of the product. मेरा point of view ये है, I mean, you could differ with it. लेकिन देखिए, तीनों, कम से कम अगर तीनों की बात करूं, नॉलेज क्रिएशन सिस्टम, नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, नॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम, तीनों को एट ए टाइम स्टार्ट ना कीजिए, मेरा मशवरा है. टू बिगिन विद, इफ यू कैन गो फॉर नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, थिंग्स विल बी इजी, पीपल विल सी द बेनिफिट, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन you can move to the knowledge creation. Or while working on the knowledge sharing system, let the knowledge be explicitly recorded somehow, refined, shown to an expert, edited, formatted, may it be ready already in the form of a system. लेकिन मैं चॉइस आप पे छोड़ता हूं. जिस ऑफिस, जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, डिसीजन विल बी योर्स. आई कैन सिंपली शेयर माई पार्ट ऑफ द नॉलेज, माई पार्ट ऑफ विजडम. स्पीकिंग ऑफ शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट in the 21st century would be, I don't have to say that you have to have some computing machine. जैसे हम कहते हैं, may it be a desktop PC, may it be a laptop, may it be a palm top, may it be a mobile phone. कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस जरूर होनी चाहिए. So in other words, a digital computer which is an essential tool
to manage the knowledge. Speaking of the digital tool, all of you might have seen www sites. Each and every company has its own web presence because of the World Wide Web. इसलिए हम कहते हैं ना वेबसाइट, वेब एड्रेस, वेब पोर्टल, वेब प्रेजेंस, वेब कनेक्टिविटी. अच्छा, इंटरनेट पर www के अलावा भी there are various ways that you will be present, but this is the best way of putting yourself in the network of networks. This web has an unparalleled medium for sharing knowledge. You will see students communities, you will see professors communities, you will see women communities, South Asian communities. You will see so many people working together in a virtual world. Of course, then, millions and billions of people and companies and organizations are coming in touch. Network security is important. And when you're speaking of the network security, immediately comes the question of how to save your intellectual property. Remember, it's a century of knowledge. Would you like to put a cap on your intellectual property? Would you like to safeguard? You have spent millions of rupees of developing this product. Can you guess how much financial and technical resources are being invested in developing this course which you are watching? Make a good guess. This is an intellectual property. Of whom? Of Virtual University. So then question is, how to live in a network world in a secure way. Remember, हम बात कर रहे थे virtual private network की, VPN. हमने बात की firewall की, हमने बात की passwords की, हमने बात की signatures की. These are some of the ways. और अब तो आपने शायद देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट्स क्यों, नादरा से जब आप अपना आईडी कार्ड लेने जाते हैं, you put your fingerprint, thumbprint. It's called biometric identification of you. इसलिए कि ये जो thumbprint है, fingerprint, it's a unique way of identifying you. Nobody in the whole world has a thumbprint like you. ये आपका नॉलेज है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है. तो हम तो सिर्फ इस वक्त ये लर्न करना चाह रहे हैं कि आपके नॉलेज को कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये जो नॉलेज है ये कैसे सिक्योर किया जाए कि सिर्फ उन लोगों तक पहुंच सके. या देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जब डाटा होता है, दे वांट टू मेक श्योर दैट देयर कस्टमर्स डाटा शुड बी सिक्योर. तो शेयरिंग और ट्रांसफर के पर्सपेक्टिव में हम ये भी तो नहीं चाहेंगे ना. अच्छा, वैसे बाजुकात होता है कि कुछ कंपनियों के लेटर उनके कस्टमर्स को लिखे हुए मैंने कई मर्तबा लिफाफे बने हुए देखे, और उन लिफाफों के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन उन कस्टमर्स की लिखी हुई होती है. नॉट गुड. यू हैव टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर, ऑफ योर स्टेक होल्डर्स, ऑफ योर स्टूडेंट. हाउ यू डू इट, वी लीव इट टू यू. It's a connected world. In a connected world, there are protocols and ethics we need to follow. और फिर बात कर रहे हैं हम collaborative computing की. Remember we talked about groupware? कैसे 2, 4, 5, 7 लोग एक ग्रुप की सूरत में आपस में collaborate कर लें. Bulletin board जिसकी हम बात कर रहे हैं, that's a groupware. Students of the class 10, 15, 20 can join in, write their opinion, write their methodology, write their opinion. It's a collaborative way of doing things together. जब हम वेब बेस्ड नॉलेज की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपने खुद महसूस भी किया होगा कि very important is the issue, how are you going to search the web when there are millions of web pages? Is there any way that I would like to find out
where is the cheapest grocery store who can ship basmati rice to me in Lahore? आप कहेंगे जी बासमती राइस आपने खरीदना है तो क्यों नहीं आप लाहौर की शादमान मार्केट से खरीद लेते? मैं कहता हूं कि नहीं, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टू शादमान मार्केट एंड पेइंग ए पर्टिकुलर प्राइस, देखिए एज ए कस्टमर आई हैव द चॉइस. इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग आई वांट टू सेव माय टाइम, आई वांट टू सेव माय ट्रैवल, आई वांट टू सेव माय रिस्क. और अगर मुझे घर बैठे उस या उससे बेहतर क्वालिटी का बासमती राइस चीपर प्राइस में मिल जाए, आई शुड गो फॉर इट. एंड यस, दिस इज व्हाट द वेब प्रोवाइड्स यू, अ मीडियम. रिमेंबर वी सेड cheaper in price, better in quality, faster in delivery. तो ठीक है, अगर मुझे सिंगापुर का मुस्तफा स्टोर, उनकी वेबसाइट भी है, चेक कीजिएगा, मुस्तफा ऑनलाइन, ह्यूज स्टोर. बिलीव मी, you can find each and every item, may it be grocery, may it be garment, may it be shoe, may it be travel ticket, you name it. Excellent business model. And they have their web presence. And you pay, they will ship you whatever you like. And then watch out for that store which is in the jungle of New Zealand. Huge warehouse. Probably the cheapest store in the world. अब ये मैं assignment समझिए. So how are you going to search? मैंने कहा New Zealand. How would you go to New Zealand? Well, you will use a search engine. ठीक है? तो search engine में New Zealand आ गया. So you reach New Zealand. Now you want to find out a retail store. And this retail store is willing to accept any customer from anywhere in the world, and believe me, still you will get a cheaper in price. देखिए, ये तो कनेक्टेड वर्ड है. तो इसलिए फिर ये कह रहे हैं कि फिर सर्च इंजन्स जो हैं, अब आईटी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फिर असाइनमेंट ये है कि जी अच्छा, ये सर्च इंजन जो है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किस सिस्टम के लिए है. अगर मैं ये कहता हूं जी ओपन सोर्स के लिए मुझे एक सर्च इंजन चाहिए, then that could be my choice. Strategic choice will be done by the company, that how I'm going to share my information, my knowledge with my stakeholders. But web is a medium where huge information is present. You can search it, you can transfer it, you can share it. Importance of searching the web to look for useful knowledge, of course through the search engine, but then risk of intellectual property resulting from the use of web. How to safeguard the risk? Reducing the risk of accessing the control. मैंने जैसे कहा था password based control, encryption based control. मैंने digital signature की भी बात की थी, या firewall और virtual private network VPN. क्वेश्चन फिर ये पैदा होता है, why should I share my knowledge? मैंने तो पिछले 30 साल में पता नहीं कितने लाखों रुपए देकर मैंने ये नॉलेज एक्वायर किया, मैंने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से मैंने मिलियंस ऑफ रुपीस दिए. ये कंपनी कह सकती है, इंडिविजुअल कह सकता है. यस, दैट इज ट्रू. क्वेश्चन इज देयर, व्हाई शुड आई शेयर नॉलेज? बट यू नो, knowledge sharing is good. It's a good idea. It's a good thing. But I'm too busy to learn how to submit my content. I don't have time. I'm just developing my content. ये लैंग्वेज आपको सुननी पड़ेगी. You know, the material is confidential. I don't want to share. I'm sorry, this is classified. आप सुनते होंगे ना? I'm too busy to create content. मैंने भाई रिपोर्ट लिखनी है और ये कल सुबह तक मुझे देनी है, अब मेरे पास शेयर करने के लिए टाइम नहीं है. This work is commercially sensitive. मैं आपसे कैसे शेयर करूं? भाई मैं तो अपने बॉस को दे दूंगा.
Why should I willingly give up my intellectual property? ये तो मैंने लाखों रुपए देके लर्न किया, ये मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। आप मुझे कह रहे हैं मैं दूसरे साथी को सिखा दूं, दूसरे कुलीग को सिखा दूं? My knowledge is my power. You want me to become powerless? You want me to kick out of my job? Because you are asking me to share my power? No, I can't do that. Well, I would share my knowledge, but I'll, some other way. I don't want to talk to you. Find out, I can connect with you through the technology. या बाज़ औक़ात आपको ये भी सुनना पड़ेगा, जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जी, मुझे तो इस कंपनी ने कुछ भी नहीं सिखाया. I don't have anything of value which I can submit. I have no idea. कुछ लोग ये कहेंगे, खास तौर पे सेल्स में जो लोग होते हैं, My time is better spent generating revenue. आप कह रहे हैं generating ideas, इसका मतलब तो आप टाइम किल कर रहे हैं. Remember, I talked to you earlier about this, कि हमें कोई कंपनी ये नहीं कहती कि टेबल पे बैठ के 15 मिनट 20 मिनट थिंक करें, रिफ्लेक्ट करें, आइडियाज जनरेट करें, हाउ टू इंप्रूव द प्रोसेस, हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग. इसलिए कि ख्याल ये किया जाता है कि जब एक नॉलेज वर्कर टेबल पर बैठा है वो तो वक्त जाया कर रहा है. और मैंने आपसे बात शेयर की थी कि इवन इफ ही और शी इज राइटिंग एन ईमेल, प्लीज डोंट टेक इट देयर वेस्टिंग टाइम. और मैंने एक कंपनी का नाम भी आपको बताया था कि जो कंपनी अपनी पॉलिसी के जरिए से अपने एम्प्लॉइज को ये कहती है कि एवरी डे यू मस्ट स्पेंड हाफ एन आवर सिटिंग ऑन योर टेबल रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग. जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना, दैट्स वेयर यू ब्रिंग इन योर डिजाइन इन द माइंड ऑन द पेपर. डिपेंड करता है कि कंपनीज कैसे आपके आइडियाज जो आपके माइंड में हैं उनकी वैल्यू परसीव करती है और उनके जरिए से फिर प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटीज को इंप्रूव करती है. बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अच्छी बात आप बता रहे हैं कि जी नॉलेज शेयर होना चाहिए, और आपने कहा कि जी ठीक है, नॉलेज इज पावर बट नॉलेज शेयरिंग इज इवन मोर पावरफुल. बट द क्वेश्चन इज व्हाट्स इन इट फॉर मी. मेरे लिए भी तो कोई रिवॉर्ड होना चाहिए ना. दैट्स व्हाई वी वांट टू लर्न what are the incentives for knowledge sharing. How are you going, और जिन कंपनियों ने, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, अभी आज के सेशन में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने सक्सेसफुली नॉलेज को शेयर करके अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और मार्केट प्रेजेंस को इंक्रीज किया, अपने ब्रांड की इक्विटी को, ब्रांड लॉयल्टी को, कस्टमर्स की लॉयल्टी को इंक्रीज किया, कंपिटिटिव एडवांटेज गेन किया, उनकी हम बात करेंगे. हाउ डिड दे डू इट? सो दैट व्हेन यू टॉक ऑफ नॉलेज शेयरिंग यू शुड हैव दैट इन माइंड. इफ समबडी एल्स हैज डन इट, वी कैन डू दैट टू. अच्छा, आप कहेंगे ये सारी मिसालें जी मैं तो यूरोप अमेरिका से ही दे रहा हूं. देखिए, पाकिस्तान से भी मैं कंपनियों की एग्जांपल्स आपको देता रहता हूं. I worked with that company in 97, 98, 99 for many years. And yes, the culture there is, they do share. अब एक अलग बात है कि हमारे यहां जरा विद इन द कंपनी तो शेयर हो रही है, लेकिन कहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स में या किसी एनुअल रिपोर्ट में या किसी बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर दूसरी कंपनियों के लिए अभी ये कल्चर नहीं आया. वी नीड टू डेवलप दिस. अभी तो ये कल्चर भी हमें डेवलप करना है कि एक ही कंपनी के 100 एम्प्लॉइज हैं या 200 एम्प्लॉइज हैं, वो आपस में कैसे बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करें. तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू अ फ्रेमवर्क, अ मॉडल which will help us and you to think about and conceive about those incentives which you can use to begin with for knowledge sharing. ठीक है? और एंड पे फिर कुछ कंपनियों के जब नाम आएंगे तो इट विल हेल्प यू टू गो ऑन द वेब, टेक अ लुक ऑन दैट कंपनी एंड सी हाउ दे हैव डन इट. तो रादर देन रीइन्वेंटिंग द व्हील, लेट्स लर्न. एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, उसको अगर आप एज ए रोल मॉडल लेना चाहते हैं, उन्होंने कैसे किया, आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए,
Let's try to present a blueprint of ours for the company for which we work. I used it once. मैं अमूमन जब मीमो लिखता हूं, for many years, on one side of the letter I will simply write with the spirit of sharing from so and so. शुरू में तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, with the spirit of sharing. अच्छा देखिए, the word itself, the word of sharing का मतलब ये है, here is someone who wants to share the idea. Here is someone who wants to share information. Here is someone who wants to share recipe. Here is someone who wants to share his growth. Here is someone who wants to share his secret. दरवाजे खुलते चले जाते हैं, दिल के दरवाजे भी और दिमाग के दरवाजे भी, with the spirit of sharing. And I saw the difference. I really enjoyed working, collaborating, coordinating, cooperating, and creating the team spirit. And once they will cooperate, once they will collaborate, once they will coordinate, they will create a product, they will create a service, they will create a course, they will create a program which will be sold in the market, revenue will be generated, profit will be there. तो प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन डिपेंड करता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, हाउ आर यू गोइंग टू कोलैबोरेट पीपल टुगेदर. ठीक है, तो आइए फिर जरा देखते हैं मॉडल पर्सपेक्टिव में क्या इश्यूज, क्या कंसर्न, क्या मेथोडोलॉजी, क्या तरीकेकार आपको अडॉप्ट करना होगा या दूसरों ने कैसे किया. एट द एंड ऑफ ईच सेशन I'll give you the name of some companies. What are the incentives of knowledge sharing? Well, 3 components. Reward क्या है मेरे लिए, conditions क्या है knowledge share करने के लिए, कोई सुनने वाला है, कोई appreciate करने वाला है, कोई recognize करने वाला है, कोई follow करने वाला है, और तीसरी बात यह है infrastructure भी available है या नहीं. तो आइए फिर तीनों incentives. मैंने कहा था ना, knowledge sharing is good. But what's in it for me? Incentive. In the form of a reward, hard and soft, दोनों. वो hard रुपये और डॉलर भी चाहिए, और वो soft रिस्पेक्ट और रेपो भी चाहिए. कंडीशंस क्या होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, और किन कंपनियों ने किया उनके नाम भी आपको अवेलेबल होंगे. ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ योर ओन फॉर शेयरिंग एंड फंड ट्रांसफरिंग. Let's begin with hard reward. मैंने अभी कहा था ना, डॉलर या रूपी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड. कितने कायदे आजम मिलेंगे, बाज़ों का आपने सुना होगा ना, वो कायदे आजम की तस्वीर 100 रुपए के नोट पे, 500 रुपए के नोट पे, रेड कलर का कायदे आजम या ग्रीन कलर का कायदे आजम, फाइनेंशियल रिवॉर्ड. देखिए, इसको इग्नोर ना कीजिए. मनी हेल्प्स यू टू बाई एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. Don't tell me money is not important. It is important to buy. It is not the only thing, but there has to be some financial reward. अच्छा, hard reward की जब हम बात कर रहे हैं, you want me to share knowledge, but are you helping me to advance my career? मैं आपको जो MIT से लर्न करके आया कोर्स, I'm ready to share. But are you giving me a guarantee that next year when I go again, you will pay for my course fee again? Career advancement. अच्छा, जॉब सिक्योरिटी. वैसे तो 21st सेंचुरी के अंदर जॉब सिक्योरिटी अब रही नहीं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि देखिए एवरी स्मार्ट पर्सन वुड हैव इट्स रिवॉर्ड, जॉब इज गारंटीड, स्मार्ट पर्सन, और आपको फिर HR प्रैक्टिसेस के जरिए से कुछ प्रैक्टिस ऐसी लानी पड़ेगी कि पीपल आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपर्टीज. तीसरी बात हम ये कर रहे हैं रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज ए रिवॉर्ड. मैं आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं विच आई फील विल हेल्प यू एलिवेटेड, फील एलिवेटेड. इसलिए कि इंफॉर्मेशन भी पावर है, और जब मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तो मैं आपको पावरफुल बना रहा हूं.
लेकिन वो एक्सेस तो होनी चाहिए ना। और अगर एक्सेस नहीं है, मेड बी द फॉर्म ऑफ ए सिस्टम, हार्ड मीमो, हार्ड फैक्स, और मे बी टेलीफोन और ईमेल कॉपी, व्हाटएवर। लेकिन ये इश्यूज हैं जो नॉलेज वर्कर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एक इंसेंटिव होंगे। इनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा नॉलेज शेयरिंग सिस्टम डेवलप करते हुए। फाइनेंशियल रिवॉर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, बोनस कुछ मिलेगा। एंड लेट मी मेंशन हियर अ कंपनी, IT company, which has declared that people, knowledge workers, IT engineers, project managers, they will have the stock option. 3 साल के बाद ये स्टॉक, 5 साल के बाद इतने % स्टॉक ऑप्शन। रिमेंबर मैंने कहा था ना, the pie will get larger and once it is a large pie you will have a larger share. Financial reward, कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से प्रमोशन, फ्यूचर वर्क। मैंने कहा था ना, मैंने जो लास्ट ईयर लर्न किया कोर्स, आई एम रेडी टू शेयर, बट कैन यू गिव मी गारंटी ऑफ द नेक्स्ट ईयर? ओके। इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल एंड नॉलेज बेस्ड वर्कर्स, you give them challenge by intellectual assignments, by sending them and learning them new courses, new ideas. और जब हम एक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं लर्निंग इनोवेशन की। मुझे नया नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, I will innovate my knowledge and I will share that innovation for the company. Take a look on these 3 companies. Go on their website and see how they are giving financial reward, career development and access to information. Consulting company है, oil and gas company है. Find out how they are doing it. देखिए ना, मुख्तलिफ सेक्टर की कंपनियां आपको मिल जाएंगी और इन मुख्तलिफ सेक्टर कंपनीज की वेबसाइट विजिट करने से और खास तौर पर उनका नॉलेज मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज विजिट करने से यू विल फाइंड आउट हाउ दे आर अवॉर्डिंग, गिविंग इंसेंटिव, हार्ड बेस टू देयर नॉलेज वर्कर्स। चलिए जी, सॉफ्ट इंसेंटिव की बात करते हैं। एनहांस्ड रेपुटेशन एज ए रिवॉर्ड। My name will be announced in the annual dinner. Mr. So and so shared 3 ideas per month. Reward. Enhanced reputation. So reputation भी एक reward है. Personal satisfaction as a reward. I enjoy working in this office. Oh, I really love to work for this boss. And by the way, people don't leave organizations. खास तौर पे knowledge workers. They don't leave organization. They leave because of the boss. उनका जो बॉस है ना, अब मैं क्या कहूं उसके बारे में। तो बॉस को भी लर्न करना है, सबऑर्डिनेट को भी लर्न करना है, हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू कोऑर्डिनेट। इसलिए कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन, व्हेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू विल नॉट, एक्सपेक्ट हायर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम मी। व्हेन आई एम सेटिस्फाइड, I would really like to share the story which I have it in my heart. I would like to share with you something which I learned so you can learn and grow. Soft part. ये भी इंसेंटिव के तौर पर हमें लेकर आना है। इसमें क्या चीजें शामिल हैं? देखिए, रेपुटेशन की हम बात कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड। मैंने कहा था ना, काश मेरा बॉस जो है अच्छा इंसान हो, मुझे ग्रो करने वाला बन जाए, मेरे साथ रिस्पेक्टफुल तरीके। अच्छा, मैं देखिए, जब मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा तो मैं भी उसके साथ, प्रोबेबिलिटी ये है, आई विल बी रिस्पेक्टफुल टू हिम। एम आई राइट और नॉट? जो प्रोफेसर स्टूडेंट के साथ रिस्पेक्टेबल तरीके से नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट भी रिस्पेक्टेबल नहीं होते। ग्रेटिट्यूड, वी नीड टू लर्न how to earn respect. उसूल है पहला। If you want to earn respect, give respect first. Anyhow, let's move. Recognition. मैं फ्लैटरी की बात ज्यादा नहीं करता हूं, कंप्लीमेंट्री कमेंट्स होने ही चाहिए। हम ही नहीं कह रहे कि आपको मक्खन लगा दें, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कहने में कि भाई आपने वेल सेड,
अच्छी शर्ट पहनी है भाई, आज यू लुकिंग स्मार्ट, समथिंग लाइक दैट. You know, it helps the self-esteem and the esteem in the eyes of the people of that colleague of yours who is sitting right next to you. Recognition. अच्छा, क्रॉस हायरार्की अलायंसेस भी और क्रॉस हायरार्की प्रमोशन भी. मैं काम करता हूं ऑपरेशन, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग में, लेकिन मार्केटिंग वाले मेरे साथ सेल्स की रुदाद, कस्टमर्स की रिलेशनिंग शेयर करते हैं. मैं भी अपने आप को एलिवेटेड फील करता हूं कि जो प्रोडक्ट के अंदर मैं फंक्शनैलिटीज में चेंज ला रहा हूं, मार्केटिंग वाले जब जाते हैं मार्केट में, वो मेरे साथ आके शेयर करते हैं. इसका मतलब यह है कि वो मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन और मेरी रेपो का भी ख्याल रखते हैं. अच्छा, फिर एक ट्रू बिहेवियर, इसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं. ट्रू बिहेवियर, whatever I'm inside, I show it outside. डिप्लोमेसी से हर वक्त काम नहीं लेना चाहिए. किसी वक्त तो आदमी का असल चेहरा सामने आना चाहिए. अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ये वो चीजें हैं कि जो नॉलेज शेयरिंग, चाहे वो एक्सपर्ट है चाहे वो सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेशन के लिए, वन टू वन मीटिंग के लिए, चाय की टेबल, वरना लोग चाय की टेबल पे चीजें शेयर नहीं करते. But this is some of the ways companies are doing it, and let's take a look the companies who are doing it. And please go on their website. देखिए, ये श्लम्बरजे का नाम दोबारा आ गया. ऑयल गैस कंपनी, वेल नोन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, all over the world. See how they're managing their knowledge. बात हो रही थी ना, what's in it for me? Well, what's in it for me attitude encourages temporary compliance. इसलिए कि जब वो पूछता है ना what's in it for me, तो बहरहाल टेम्परेरी कंप्लायंस तो आपको मिल ही जाता है. वो बिहेवियर मिलता रहेगा, कंप्लायंस आपको मिलती रहेगी, नॉलेज शेयरिंग होती रहेगी. इट ओवर प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, इसका भी फिर आपको ख्याल करना है कि ज्यादा प्रमोट भी ना हो जाए. इट रप्चर्स रिलेशनशिप्स, इसलिए कि जब आदमी बार बार ये पूछा व्हाट्स इन इट फॉर मी, अब ये भी कल्चर की बात है. गोया डॉलर मिलेगा तो मैं मूव करूंगा, तो भाई रिलेशनशिप की भी कोई वैल्यू है. और आज के दौर में तो रिलेशनशिप की वैल्यू डेफिनेटली है. बाज़ औक़ात फिर जब आदमी का ये एटीट्यूड होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, हर चीज हर दफा वो ये पूछता है, इट डिस्करेजेस रिस्क टेकिंग एज वेल. तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिसका आदमी ख्याल रखे, तो ये इंसेंटिव्स के तौर पर इंप्लीमेंट करते हुए नॉलेज शेयरिंग सिस्टम के हवाले से इट विल हेल्प यू आउट. लेट्स लुक एट सेकंड कंपोनेंट ऑफ कंडीशंस. वेल, स्पीकिंग ऑफ द फर्स्ट सब कंपोनेंट ऑफ कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड डिसेमिनेटिंग नॉलेज. तो सवाल यह है कि ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप नॉलेज शेयरिंग सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं ना, इमीडिएटली कम्स द क्वेश्चन, who will acquire and who will disseminate the training, and debriefing की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेंटरिंग और कोचिंग और असिस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कितना टाइम एलोकेटेड है? क्या जो कुछ कहा जा रहा है, मैंने कहा था ना ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखी जा रही है, क्या हम लिख सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं? इज कॉपीइंग परमिटेड? सीनियर मैनेजमेंट का रवैया क्या है? लीडरशिप बाय एग्जांपल है या नहीं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडरशिप बाय एग्जांपल हो? किसी की तो हो. ये चंद कंपनियों के नाम आपके सामने आ गए. टेक अ लुक हाउ दे आर डूइंग इट. कल्चर चेंज इज रिक्वायर्ड, and it requires culture change in the responsibilities as well. Anyhow, let's move to the status. Is there anyone who can delegate and relegate and empower? ये जो मैनेजमेंट के लेवल क्या कहते हैं हम, 21वां ग्रेड, 22वां ग्रेड, 18वां ग्रेड, तो आपको मैनेजमेंट के इन लेवल्स को भी अब वक्त आ गया है कि कम करना पड़ेगा. पाकिस्तान ही के अंदर खास तौर पर बिजनेस सेक्टर में हार्डली यू विल फाइंड 3 लेवल्स, 4-5 लेवल्स, दैट्स ऑल. ये 22 लेवल पब्लिक सेक्टर में, आप में से अगर कोई स्टूडेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, प्लीज
look into it. These levels have to be reduced. अच्छा, फिर स्टेटस के हवाले से all our contributors, experimentation is encouraged. Is it really encouraged? We have to look into this issue, that how the status allows कि जी नहीं, ग्रेड 5 वाला एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ ग्रेड 18 वाले को। क्यों? ग्रेड 5 वाले के पास दिमाग नहीं होता? We have to look into this issue कि स्टेटस को हमारे स्टेटस ऑफ कार, स्टेटस ऑफ पोजीशन, स्टेटस ऑफ बिल्डिंग, status of office. Let's try to find out status on the basis of knowledge, status on the basis of ideas, status on the basis of know-how. In other words, हम बात ये कर रहे हैं कि इवन एकेडमिक सेक्टर के अंदर भी, हॉस्पिटल्स के अंदर भी, जब हमें बाज़ औक़ात ये देखने को मिलता है कि within professors, all of them are PhDs, still issue of status really bothers and productivity is decreased. हॉस्पिटल्स में डॉक्टर वर्सेस नर्सेस की कन्फ्लिक्ट, हालांकि देखिए पेशेंट और हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव में डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट है, नर्स भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर का अपना रोल है, नर्स का अपना रोल है, बोथ आर कंप्लीमेंट्री, देयर इज नो नीड फॉर कन्फ्लिक्ट। बट जब डॉक्टर ही समझता है कि नर्स, उसका स्टेटस तो लोअर है, तो फिर नर्स भी समझता है कि नहीं, मेरे बगैर पे देखते हैं डॉक्टर कैसे काम कर। नॉलेज शेयरिंग कैसे होगी? सो नॉलेज शेयरिंग के, अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, एंड आई हैव सीन सम हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान, दे आर लुकिंग इनटू द नॉलेज मैनेजमेंट एस्पेक्ट बिकॉज इट हेल्प्स इंप्रूविंग द हेल्थ डिलीवरी. They are concerned about the health delivery. Certainly, this kind of status conscious people, it works against the soft reward of the enhanced reputation. But it really helps when you're developing a knowledge sharing system. Communities का तो लफ्ज ही देखिए, क्या communities बनने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कंडीशन मौजूद है? अगर नहीं, देखिए कम्युनिटीज का फायदा क्या होगा? शेयर्ड कमिटमेंट, ट्रस्ट है, ये पहले भी हमने बात की, डिपेंडेंस के साथ लोग वाइटैलिटी के साथ काम करेंगे, सोशल इंटरेक्शन बेहतर होगा, पीपल विल फाइंड आइडेंटिफाइड विद सर्टेन कम्युनिटी. ये मार्केटियर्स की कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की कम्युनिटी, प्रोफेसर्स की, स्टूडेंट्स की, लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, फार्मासिस्ट्स की. कम्युनिटी का मतलब ये है सॉफ्ट नेटवर्किंग. अगेन कुछ आपको कंपनीज मिल रही हैं यहां पर. See how they arrange their social events, how they arrange the space in which people work, what common language do they talk, and they share knowledge. ये जो क्वेश्चन है ना कि भाई हमारे यहां ये नहीं होगा काम, definitely it creates weak ties. It inhibits the dissemination of information. It puts limits on the membership of the communities. कैसे लोग ज्वाइन करें? आप अल्टीमेटली फिर वो अपने दिल और दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको भी शेयर करें. आइए फिर इंसेंटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग के पर्सपेक्टिव में आखिरी जो कंपोनेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जरा देखें. पहला उसका पार्ट है यूजेबिलिटी. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज मौजूद है इट कैन बी यूज्ड इजीली? जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि इंटरनेट ही नहीं है, ईमेल ही एक्सेस नहीं की जा सकती. Well then, how can we talk of knowledge management? Once again, there is a company, really beautiful network and infrastructure that information can be shared among all the workers of that company all over the world. Articulation, integration of tool with community. क्या communities जो share करना चाहती हैं, जो articulate करना चाहती हैं, can they speak out? तो tools को कम्युनिटीज के साथ आपको इंटीग्रेट करना होगा, तभी वो, जैसे फर्ज कीजिए, इज देयर अ बुलेटिन बोर्ड, कम्युनिटीज कैन स्पीक आउट, कैन दे एक्सचेंज देयर आइडियाज. हियर यू कैन फाइंड अ कंपनी हु एनकरेजेस द आर्टिकुलेशन ऑफ कम्युनिटी. इन्हीं लोगों को जुबान देते हैं. आर्टिकुलेशन इसी को कहेंगे ना आप, कि नॉलेज वर्कर्स कैन स्पीक आउट. उनको खास तौर पर नौजवानों को. I've seen a company where they have a program, they call it Voice of the Youth. यूथ मतलब
आप उसे कह सकते हैं ना जी, यूथ दे गॉट अ बिग माउथ. वेल, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल, they are young, they are energetic, they are vital. Let's listen to them. If they are speaking good, if they are speaking something great, good for the company, let's implement it. Critical mass. It's required that people should develop a critical mass. And that critical mass could be in the form of a community as well. और आखिरी कंपोनेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है कि क्या कुछ रिपोजिटरीज भी मौजूद हैं, नॉलेज बेसिस भी मौजूद हैं, और फिर लोगों को कुछ ऐसी जगह भी दे रहे हैं, ऐसी स्पेसेस भी मौजूद हैं. और यहां मुझे याद आ रहा है, आई वाज अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन नॉलेज मैनेजमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड समबडी इन फ्रॉम सिंगापुर वाज शेयरिंग दिस कि जी हमने स्पेस तो दे दी लोगों को, बट पीपल वर नॉट विलिंग टू शेयर. एंड इमीडिएटली समबडी सेड, व्हाट वाज द कल्चर? वाज देयर एनी बाउंड्री? Was there any barrier? You have to see that you provide a space where people will speak in an informal way, not in a formal way. In other words, ease of knowledge sharing, equal status. Boss or subordinate, knowledge sharing kam hogi, equal status. Colleagues, sitting around a table. अच्छा, इसमें मुझे याद आ रहा है, Multimedia University, Kuala Lumpur, I visited the Knowledge Management Center, which was opened by Motorola University. They had a policy that when two colleagues have to discuss or talk or have a dialogue, they will go and sit on a chair, sit on a table, round table, with a cup of tea or coffee, on an equal status. They will come out of their office in a zone, in a space where they will share the knowledge and have a dialogue. आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ये स्पेस, उससे फिर कम्युनिटी की ओनरशिप भी आएगी, और जो वीक टाइज हैं उनको भी आप एक्सप्लॉइट करेंगे. हाँ, और ये जो आखिरी बात है, ट्रांसफर फ्रॉम ओल्डीज टू द न्यूबीज. नए लोग जो आते हैं, न्यू कमर्स, उनको पुराने कुछ बताते ही नहीं है. यहां तनख्वाह कब मिलेगी, यहां छुट्टियां कितनी मिलती हैं, काम कैसे होता है. तो ये जो नॉलेज ट्रांसफर है, नॉर्म्स की ट्रांसफर है, कल्चर की ट्रांसफर है, फ्रॉम द ओल्डीज टू द न्यूबीज. अगर ऐसी कोई स्पेस हो कि जो इसी काम के लिए मखसूस हो, ये भी तो नॉलेज ट्रांसफर है, ये भी तो नॉलेज शेयरिंग है. कंपनी के अंदर उसकी मूविंग इन, उसकी ज्वाइनिंग इन ईजी हो जाएगी. और फिर शुरू में जिसने उसको हेल्प की थी, believe me, they remember for the rest of their life कि on day one फलां आदमी ने मुझे हेल्प किया. In other words, what we are talking here is buying in, but some investment has to be there. So my dear students, my dear knowledge workers, my dear knowledge professional, the question is, if we are talking of the incentives for knowledge sharing, let's look at the rewards to jump start for knowledge sharing. Reward has to be there, soft and hard, to match the expectations of different personalities. आपने ओबी के कोर्स में डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स पढ़े होंगे. हर पर्सनैलिटी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. टू मूव फ्रॉम नॉलेज एज ए प्राइवेट गुड टू नॉलेज एज ए पब्लिक गुड, ऑर्गेनाइजेशनल गुड. कंडीशंस फिर आपको लानी होंगी लॉन्ग टर्म कंप्लायंस की. हेल्प देम टू एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, प्रमोट ए मॉरल ऑब्लिगेशन. और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से to help new members of the staff for cross team working. And what kind of appropriate support is required to convert the private knowledge into public knowledge, having a knowledge sharing space in the form of a community so that conditions are met, rewards are awarded, infrastructure is available. These are some of the incentives, believe me, for knowledge sharing. And if somehow you take care of these in the beginning of the project, you make the master plan and you make sure, देखिए ये भी तो सिस्टम के हिस्से हैं ना. एक वो सिस्टम की एप्लीकेशन है जो आप चाह रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड हो, लेकिन नॉलेज शेयरिंग के लिए कंप्यूटर बेस्ड से ज्यादा स्पेस बेस्ड, कल्चर बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, वर्कर बेस्ड
मैकेनिज्म्स और सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमें एज ए मैनेजर, एज ए नॉलेज वर्कर, या अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नॉलेज मैनेजमेंट की और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, इन चीजों का ख्याल रखिए और इन कंपनी से लर्न कीजिए जिनके नाम हमने आज लर्न किए, हाउ दे हैव डन इट। एंड आई एम श्योर दिस कुड बी अ गुड बिगिनिंग पॉइंट फॉर डेवलपिंग अ नॉलेज शेयरिंग सिस्टम। गुड लक। Maybe you start from here. It's a good start. Sharing is a smooth word. And when you come through a smooth way, you can really cut their pocket. You can cut their purse like the Japanese do. कहते हैं, भाई देखिए, I'm sorry, I have to cut your pocket or purse. But I'm giving you a product which will really give you beautiful benefit, excellent value. You will forget that somebody cut your pocket. शेयरिंग का भी यही हाल है। शेयर इन अ वे पीपल डोंट फील इट, रादर पीपल फील obliged. Thank you very much, and I'll share with you some more knowledge on developing the sharing application and a sharing system in the next session, session number 40. Until then, Khuda Hafiz, goodbye, and Assalamu alaikum.